तो दोस्तों 2023 एंड 2024 हैव बीन द years ऑफ रिसेशन इन टेक इंडस्ट्री। मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर किसी बैच में 10 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो 8 स्टूडेंट्स को भी कुछ केसेस में जॉब नहीं मिली अब तक, और वो सोचते हैं कि यार पीएचडी कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। और जब मैं भी मास्टर्स कर रहा था इन माय टाइम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूएस, मैं भी पीएचडी की तरफ काफ़ी इंक्लाइन था, बिकॉज रिसर्च प्रोफेसर्स हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि यार मास्टर्स में तुम फंडिंग ले रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, तो चलो पीएचडी भी कर पाओ। लेट मी टेल यू द एंटायर स्टोरी अबाउट पीएचडी एंड व्हाई maybe it is not for you in 2024. If engineering is a race, then PhD is a marathon. So start karte hain with my journey. So hi, I'm Harnoor and I am someone who did fully funded master's degree, and I did undergrad in the US as well. So I went to Georgia State University, not the top 100. अभी आजकल कंप्यूटर साइंस में it's close to top 100 in the US. It's really hard to compare, like not one of the best you think of, but at least I am grateful that I was in a university which was fully funded, got the best peer group, got great location, Atlanta, close to Georgia Tech. So all of these features I got it, and I'm really happy that I could make it to this university. अब मास्टर्स भी मैंने यहीं से कर ली बिकॉज आई डिड अंडरग्रेड इन 3 years, तो सोचा कि 3+1 4 years में आई डू मास्टर्स एज वेल, बिकॉज आई हैड सम क्रेडिट्स इन इंडिया विच इज़ लॉन्ग स्टोरी, बट या आई डिड 4 years undergrad and masters was fully funded. So during my masters, professors कहते हैं कि आपका project बहुत अच्छा चल रहा है, why not convert it to a PhD program and you will graduate in 4 years. And I thought a lot about it, but I got lucky. I was in a recession too. 2020 was really difficult market to find a job. I was lucky that I got a job and मुझे PhD नहीं करनी पड़ी. But let me tell you why you should still try hard to get a job after masters, and maybe just stick with masters, because PhD is a degree which requires long term commitment. मैं इतने दोस्तों को जानता हूँ who have spent their whole 20s in education, undergrad, masters, PhD, तीनों करते करते उनकी एज 28 29, कुछ केसेस में 30 अबव तक भी चली जाती है, बिकॉज मे बी देयर थीसिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट अप्रूव्ड, मे बी देयर क्वालिफाइंग एग्जाम इज़ नॉट क्लियर्ड ऑन टाइम. सो काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं. मे बी योर PhD माइट नॉट बी done smoothly if you are not thinking about the errors that can happen in your program. And number 2 reason, PhD could be toxic. मैं देखता हूँ कि when PhD students compare themselves with other students कि हाँ मैं 26 का हो गया हूँ, अभी भी PhD कर रहा हूँ, और मेरे साथ वाले दोस्त 22 23 एज से कार लेके बैठे हुए हैं, घर लेने वाले हैं, उनकी फैमिलीज ग्रो कर रही है, एंड दे आर वेल सेटल्ड एंड आई एम स्टिल स्टडिंग. और अपना लाइफ स्टाइल कंपेयर करेंगे, बिकॉज इवन दो PhD कुड बी फुली फंडेड, आपको ट्यूशन फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट सैलरीज आर नो वेयर एज गुड कि आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी पाओ एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर fully employed in a tech company. So ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है. And by the way, on flywithsync.com you can find all the resources you need. आपको letters of recommendation, statement of purposes, या फिर even transcript, certificate जो आपको upload करने हैं for your masters or PhD learning, you can find immediately, not templates, my own certificates that you can use directly. So do check out with the link in description below. And next, number 3 is कि students सोचते हैं जो masters fully funded नहीं कर पाते हैं, because I was lucky that I was in a fully funded program, but many students who are not in a fully funded program, who have never experienced how research and projects work in PhD, they just want to try it out and go for a PhD. उनके लिए एक बहुत important warning, never take a decision which is hard to reverse. PhD program में आप enroll करते हो, it is really hard to reverse that decision, because you are leaving the opportunities you had after masters. You had the opportunity for OPT, STEM OPT. So wo decisions you are denying it and going for PhD, because once you are in PhD, you have a commitment of 4 to 5 years. You have a research project and you have to continuously deliver, continuously make projects, continuously travel for conferences, and ये commitment बहुत लंबी हो सकती है. Thousands and thousands of your models will fail. While you compare someone in tech job, तो सबसे पहले तो when they graduate, let's say at the age of 22 23, they are starting their job. अब let's say per year, let's say they are saving 10 lakh rupees or 20 lakh rupees per year in the US, UK, wherever. Now comparing with PhD student 4 years के बाद let's say is making more money, saving more money, let's say 24 25 lakh rupees. But the first guy was saving 20 lakh rupees. अगर वो अपने मनी अच्छे से इन्वेस्ट करता है
4 years later, it could be maybe 35 lakh rupees on an increment of 7 to 8% per year with the good stock market and index fund returns. So that could be game changing in terms of financial value that you're accumulating with just tech job versus PhD. तो आप चाहे बाद में ज़्यादा पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, that's questionable. But even if you are making more money, your savings rate could be less, and the lifestyle after 4 years, which you can think of buying a house versus you can just start a life. तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर पूछने चाहिए. नाउ टेक जॉब के लिए पीएचडी वर्सेस मास्टर्स, अगर आप ये सारे आर्टिकल्स देखो, यू विल रियलाइज दैट पीएचडी डज नॉट एड एनी मोर वैल्यू दैट अ मास्टर्स ऑलरेडी डज. आप अगर ये सारे आर्टिकल्स देखोगे, 90% ऑफ द स्किल्स आर ऑलरेडी गेन थ्रू मास्टर्स डिग्री एज कंपेयर टू पीएचडी डिग्री. और जितने भी आप कोर्सेज लोगे इन पीएचडी can be taken in masters, and even with salary that benefits is not significantly higher, maybe 5-10%, or maybe even same, or sometimes even less, because your relevant experience, your skills shape the return you get as compared to a degree. You're losing that return, you're losing that package. अच्छा, ये तो मैं सरासर डिसएग्री करता हूँ तुमसे हरनूर साहब. इशू ये कि देखो, आप पीएचडी स्टूडेंट का आप कोई जेल में तो हो नहीं, ठीक है. अब ये जो पॉइंट है कि जो पीएचडी ना करके वो जो 5-6 साल अगर आप जॉब कर रहे होते तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे. हाँ, मेरा ये पॉइंट था. हाँ, तो वो गेन्स आपने लूज़ कर दिए है कि नहीं. अब देखो, इन्वेस्ट करना ही है तो फिर बैचलर्स भी क्यों करो. वो 12th के बाद ही जॉब करना स्टार्ट कर दो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो. ऐसा थोड़ी है, हर किसी का अपना इन्वेस्ट करने का टाइम अलग होता है. और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ अपने पीएचडी प्रोग्राम में टू बी अमॉन्ग सच ब्राइट माइंड्स, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, जब आपकी सोचने की कैपेबिलिटी और आपका करियर बन रहा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं 5 साल में आपको इन्वेस्टमेंट खो दिया बाद में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. एंड इस पॉइंट से मैं देसी अमेरिकन प्रोफेसर से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर शाहरुख खान ने भी कहा है कि फर्स्ट गेट रिच एंड देन फॉलो योर पैशन, जो करना करो, तो मेरे ख्याल से भी ये है कि अगर आपके पास एक टाइम पर डिसीजन है कि 1 साल जॉब करके उसके बाद आप अगर कुछ कमा सकते हो, एक स्टेबल पोजीशन पे जा सकते हो, दैट इज बेटर देन पुटिंग योरसेल्फ इन पीएचडी, जहां पे आपकी स्टेबिलिटी बहुत देर बाद आएगी. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई हैव इज कि एक बार जॉब ट्राई करके देखो. आई एक्सेप्ट इट कि जॉब नहीं मिल रही है, पर जो लोग जिन्होंने कभी जॉब की ही नहीं है, स्टूडेंट्स हु कम विद almost zero experience in the US straight for masters, they struggle the most. They think yaar, like, I'm not getting a job, maybe job is not for me, I should do PhD. But without actually trying to do job, आप सीधा सोच रहे हो job आपके लिए, that's very wrong decision, because जो भी decision is reversible वो आपको कभी भी ले लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप पीएचडी कभी भी कर सकते हो, बट एक बार पीएचडी स्टार्ट कर ली, दैट इज वेरी हार्ड टू रिवर्स. सो दैट्स वाई पीएचडी सोच समझ के तब लो व्हेन यू थिंक कि इट इज़ फॉर यू. बट जॉब अभी ट्राई करो, बिकॉज without trying something you cannot say that it is not for you. But for job, try harder every single day, and I'm sure if you try, maybe one day you will get a job, because इसमें risk कम है and PhD is a bigger investment. हाँ, कई students करते हैं कि they go for 1 year PhD, when they get a job they leave and quit PhD. Could be possible, but that is also very difficult. तो इस कारण आपको तभी PhD करनी चाहिए जब तक आपका रिसर्च माइंडसेट एंड यू हैव एन आइडिया कि आप फैकल्टी ज्वाइन करोगे. अगर आप फैकल्टी की तरह या फिर अगर आप प्रोफेसर बनना भी चाहते हो, नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स एंड जॉब लेटर्स यू विल गेट विल बी मच लेसर एज कंपेयर टू विद टेक जॉब, एज कंपेयर टू विद अ PhD डिग्री, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम होंगी. एक यूनिवर्सिटी बहुत कम ओपनिंग्स लाती है एज कंपेयर टू टेक जॉब. एज डॉक्टर चैतन्य इन हिज वीडियो सेड एज वेल, बिकॉज इफ यू डोंट हैव राइट प्रोफेसर, राइट कम्युनिटी, राइट फ्रेंड्स, इट इज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज. आप कई बार अपने आप को क्वेश्चन करोगे कि इज इट राइट डिसीजन, बिकॉज 4 years कुड बी अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट. सो दैट्स व्हाई एनी न्यू स्टूडेंट हु इज कमिंग टू द यूएस राइट नाउ, मैं तो उसे कहूँगा कि एक्सपीरियंस लेके आओ. कम विद गुड एक्सपीरियंस 1 to 2 years, so that your competition is lesser and you are like well versed with the tech community. But अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर PhD करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो, because once you land in tech industry you realize कि रिसर्च आप कभी भी कर सकते हो. यू डोंट नीड नेसेसरली अ PhD डिग्री टू बी अ बेटर रिसर्चर आप कभी भी कर सकते हो. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी इन research full time and you want to teach as well, then PhD could be for you. And there is more to it. Maybe Chaitanya can reply to this video, but yeah, that's my thought process. So
सोच समझ के PhD का डिसीजन लेना. बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बिकॉज इवन दो यू नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, बट योर टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन यू थिंक.